السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں شہباز اصغر لاہور سے اس وقت انڈس ہسپتال ایمرجنسی میں حضرت اقدس مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد مفتی صاحب ناظرین کے ساتھ گفتگو فرمائیں گے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت ڈیرہ اسماعیل خان سے سیالکوٹ کے سفر پہ روانہ تھے کہ رستے میں اچانک طبیعت خراب ہوئی، جس میں پیٹ کی وجوہات اور موشن کی وجہ سے حضرت کی کافی طبیعت خراب ہو گئی، جس وجہ سے ان کو ایمرجنسی یہاں لاہور کے انڈس ہسپتال میں منتقل کرنا پڑا۔ اس وقت بھی حضرت لاہور کے ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ تمام احباب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور میں یہ مائک حضرت صاحب کی طرف کرنے لگا ہوں، اور اس کے بعد حضرت آپ سے کچھ چند باتیں انشاءاللہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کا شکریہ جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی ہیں۔ مجھے ابھی ساتھیوں نے بتایا کہ کافی حضرات نے دعائیں بھی کی ہیں، پیغامات بھی آ رہے ہیں، ملک غیر ملک سے ساتھی رابطے میں بھی ہے، تو میں ان سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے دعائیں کی ہیں، اور رب کریم نے بہت کرم کیا ہے۔ میں زندگی میں کبھی ایسی تکلیف نہیں دیکھی جو آج دیکھی۔ ایک تو میں جب گھر سے نکلا خیبر پختونخوا ڈیرہ اسماعیل خان سے، تو ہم اس وقت پنجاب داخل ہو چکے تھے، ڈسٹرکٹ جھنگ سے تھوڑا پہلے تھے۔ اس وقت کچھ الٹی وغیرہ کی کیفیت ہوئی، موشن لوز موشن کے حالات۔ یقین مانیے میں نے اپنا سفر جاری رکھا کہ میں اللہ کے لیے سفر کر رہا ہوں۔ میں نے کوٹ میں پسرور کے اندر ایک مدرسے میں ختم البخاری کی تقریب سے گفتگو کرنی تھی۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ کوئی نہیں مسئلہ، اللہ کرم کرے گا، لیکن تکلیف بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ یقین مانے ہم جب موٹر وے پر آئے M4 پر، تو میں گاڑی سے نکلا، میں نیچے گر گیا۔ نماز پڑھنے کے لیے میں رکا۔ میں نے ابھی تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی، الحمدللہ ٹائم باقی ہے، میں پڑھ لوں گا، لیکن عصر اور مغرب میں نے اپنے اپنے وقت پہ تو پڑھی ہے۔ اللہ جانتا ہے نہ میں رکوع کر سکا نہ میں سجدہ کر سکا، میں نے اشارے سے پڑھی ہے۔ اس حد تک تکلیف تھی کہ میں اس جا نمازوں پہ گر گیا۔ ساتھیوں نے میرے خیال میں انٹرنیٹ پر خبر لگائی، جس کی وجہ سے تمام احباب نے دعائیں کی، تو میرے خیال میں ان حضرات کی دعاؤں نے آج کرم کیا ہے۔ ابھی ہم یہاں لاہور پہنچے ہیں، اور لاہور میں یہاں آ کر اس جگہ ہسپتال میں بھائی شہباز کی دعوت پر تھے، تو اب یہاں ان حضرات کا اللہ بھلا کرے، ڈاکٹرز وغیرہ کا، ان نے تشخیص بھی کی ہے، اور یہ آپ کے سامنے میرے خیال میں کوئی ڈوزز دوائی کی ہے وہ چل رہی ہیں، ڈرپ کی صورت میں بھی ابھی 2-3 انجیکشن بھی ہوئے۔ یہ حضرات تسلی تو دلا رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ باقی ایک بات میں نے آپ سے کرنی تھی، وہ یہ ہے کہ ابھی مجھے کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ انجینئر مرزا اور ان کے کچھ چیلوں نے، پتہ نہیں یہ کون ہے، میں تو ابھی تک پوری تفصیل معلوم نہیں ہے، اس کے کچھ چیلوں نے خبر چلائی ہے کہ آج ہمارا مفتی عبدالواحد صاحب سے مناظرہ تھا، اور انہوں نے یہ اس کا پتہ نہیں کیا ہے بھائی، یعنی بہانہ کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس کی تردید کرتا ہوں۔ میں تو سیالکوٹ کے جلسے پر آ رہا تھا، ہمارے وہاں مولانا ہیں بھائی کلیم اللہ کے واسطے سے، جو ہم نے وہاں تاریخ دی تھی، مولانا قاری محمد صالح صاحب کی دعوت پر میرا تو وہاں جلسہ تھا، اور آج سے 4 ماہ پہلے وہاں طے تھا، میں ان کے ہاں بھی نہیں جا سکا۔ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی نا مناظرے کی، تو ہم حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے وارث ہیں، اللہ پاک بڑے بول سے بچائے، مجھے چارپائی پہ اٹھا کر بھی لے جانا پڑتا تو یہ حضرات لے جاتے،
बाकी मिर्ज़ा एंड कंपनी और इन अहले बातिल में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अहले हक़ का मुकाबला कर सकें। ये झूठा प्रोपेगेंडा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जिन हज़रात ने दुआएं की हैं अल्लाह उन्हें अजर देगा, और जिन्होंने हमारे बारे में बहाने की बात की है या हमारे गुनाह इनको मिलेंगे, और अगर इनकी कुछ नेकियां हुई तो वो हमारे खाते में आएंगी। मुझे तो इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं है। बाकी मेरे रब ने ज़िंदगी रखी तो ये तमाम अहले बातिल भूल जाए कि हम दलाइल की दुनिया में इन्हें कोई सुख या चैन से बैठने दें। अगर ये सहाबा कराम, अहले बैत पैगम्बर, अइम्मा अतहार, खुलफाए अरबा, खुलफाए अइम्मा, जितने हमारे अकाबिर उसके ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा बोलें, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई बात करे, हमारी ज़िंदगी है ही इसके दिफा के लिए। हमने सर हुज़ूर पाक के दीन पर लगाने के लिए रखी हुई हैं। ये कादियानियत से लेकर इन तमाम फ़िरक़ाए बातिलत के दुम पर इंशाअल्लाह ताला हम पाँव रखेंगे जैसे रखा हुआ है। बाकी किसी को तकलीफ़ हो जाने से या अल्लाह न करे किसी के दुनिया के से चले जाने पे भी ये मसला जो है ना, क्या कहते हैं, यूँ ख़त्म नहीं है कि आले बातिल से हम दब जाएंगे। ये बात जहन में रखें। कायद मिल्लत इस्लामिया दामत बरकातुहू एक जुमला फरमाते रहते हैं कि सर कट जाना शिकस्त नहीं है, आपका सर झुक जाना शिकस्त है। भाई ऐसी बात नहीं है। आपने हमारी फितरत में वो देखा ही नहीं है कि कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। ये कोई तबीयत का मसला हो या कोई सहर के मामले हों या जादूगरों की जादूगरी हो, ये सब बातें जहन में रख लो कि इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम सेहत देगा, हम पहले से बढ़ के दीन की खिदमत में आएंगे। ये एक ही तो जान है, ये रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन पर लगाएंगे भाई। हम तो औलाद और अपना तमाम माल लगाएंगे। मैंने अल्लाह के करम से अपनी जवानी के अच्छे से अच्छे दिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दीन पे लगाए हैं। मुझे रब ने ताकत दी, मैं अच्छे से अच्छा माल हुज़ूर के दीन पे लगाऊंगा। मैं अपनी औलाद हुज़ूर के दीन पे लगाऊंगा, अपनी अज़वाज हुज़ूर के दीन पे लगाऊंगा, अपनी जान हुज़ूर के दीन पे लगाऊंगा। ये तो एक जान है, आप भूल जाएं। इस तरह के प्रोपेगेंडे से न चलें, साथी मुतासर न हो। बस दुआओं को जारी रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम और फजल का मामला फरमाए। रब ने पहले भी करम किया, मैं अब भी अल्लाह से राज़ी हूँ, मैं अल्लाह से नाराज़ नहीं हूँ। शामत अमाल मन आनम के मन दानम, बस रब्बे करीम अता फरमाए। मैं आखिर में एक रिवायत पढ़ के बात ख़त्म करता हूँ। हदीस पाक में है, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन इब्तलाहु हत्ता यस्मा तज़र्रुअहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया गया जिसका मफ़हूम है कि जब रब्बे करीम किसी की दुआएं कबूल करता है तो मोहब्बत का एक तरीका यह भी है कि उसे किसी तकलीफ़ में मुब्तला कर देता है ताकि उसकी दुआओं को सुन सके। इसके दो माने हैं, एक तो वो दुआ करे अल्लाह उसकी आह सुने, एक माना है कि उसकी जो दुआएं मांगी थी रब कबूल फरमाएंगे। तो मैं मांगता हूँ अब भी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी ववस्सिअ ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी इलाही नज्जिनी मिन कुल्लि ज़िक़्क़िन बिजाहिल मुस्तफ़ा मौलल जमी वहब ली फ़ी मदीनतिही क़रारम बिईमानी व दफ़्निन बिल बक़ी। मैं इन सब के लिए दुआएं करता हूँ जिनने हमारे लिए दुआ की है। अल्लाह इन सब को शायान शान अजर जज़ील अता फ़रमाए। अल्लाह इनसे और उनकी औलादों से दीन की खिदमत ले। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फ़रमाए। रब्बे करीम हमारे मुल्क के ऊपर सही और इस्लामी हुक्मरान अता फ़रमाए। सहाबा कराम और अहले बैत उज़ाम के निज़ाम को नाफिज़ फ़रमाए। रब्बे करीम उलमाए कराम की मदद और नुसरत फ़रमाए। रब्बे करीम हमें कुफ़ार और कुफ़ार के एजेंटों से महफूज फ़रमाए और अल्लाह ताला इस जैसी फ़िरका वारियत फैलाने वालों से हमें बचाए। ये जो बातें कर रहे हैं इन लोगों ने हमें बहुत हल्का लिया है, ये हमें जानते नहीं हैं। मैं अपने साथियों की तसल्ली के लिए कहता हूँ, आप इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से पुरुमीद रहें, मांगते रहें। इंशाअल्लाह रब्बे करीम सेहत देंगे और इंशाअल्लाह देंगे तो फिर भी हम कामयाब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बीमारी में हमें कबूल कर लिया तो हम फिर भी कामयाब। कुछ भी नहीं है इंशाअल्लाह, कोई मसला भी नहीं है। ये याद रखें, अगर एक मामले से कोई जाएगा तो याद रखना, मैंने इंशाअल्लाह ताला वतन अज़ीज़ के तूल अर्ज़ में घूम के बिहम्दिल्लाह
बेशुक्रिल्लाह बेकुदरतिल्लाह बेऔनिल्लाह वो काम किया है जो इंशाअल्लाह ताला रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मैं अपनी ज़िंदगी से पुरुमीद हूँ और खुश हूँ, मुझे कोई किसी किस्म की दुनिया छोड़ने की तकलीफ़ नहीं है। आप ये न समझें। बाकी जहाँ तक रहा ये बात कि मिशन हक़ तो अल हक़्क़ु यालू वला युअला, दीन बुलंद होने के लिए आया है, वो दीन मग़लूब होने के लिए नहीं आया। हमें दीन की ज़रूरत है, दीन को हमारी ज़रूरत नहीं है। ये बात ज़हन में रखें। अगर कोई एक शख्सियत आप कहते हैं दुनिया से चली भी गई तो ठीक हो गया, रब करीम अपने दीन की हिफाजत के लिए और अफराद पैदा करेंगे। मैंने बहुत तकलीफ़ देखी, बहुत देखी, लेकिन अल्लाह के करम इससे ज़्यादा देखे हैं। मैं अपने अल्लाह से राज़ी हूँ, अल्लाह से खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल। बाकी साथी दुआएं ज़रूर करें। मैं अपनी माँओं बहनों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन हज़रात ने हमारे लिए हाथ उठाए हैं। बस और मैं ज़्यादा बात क्या करूँ, ये तो मैं इतना बोल पड़ा, वरना तो शायद मुझसे बात भी नहीं हो सकती थी पहले। अल्लाह आपको खुश रखे। व्हाट्सएप पर भी ये बता रहे हैं और बाकी सोशल मीडिया पर भी बहुत से पैगामात हैं, शायद फ़र्दन मैं सबको जवाब न दे पाऊँ। यहीं से उनकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ है और दुआ भी है। मैं आपके लिए दुआएं करूँगा, आप मेरे लिए करना। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।